Hello dear Pisces, you are most welcome to my channel. This is Neha Sharma and you are watching my channel Tarot by Neha Sharma. I hope you are doing good and staying safe at home. If you want any personal reading dear Pisces, you can mail me. I will leave my mail ID in the description box of this video. So please keep feedback me because your queries, your feedback is very precious to me, because every time whenever I get the feedback from you guys, I feel so motivated and it inspires me to make more good and better videos and more I work hard to get a more resonating readings for you. So I always try to improve and enhancing new things in my video. So thank you so much for your appreciation, suggestion and feedback. I'm so thankful to you for this. Thank you so much. So today we are going to read for the Pisces and ये मीन राशि के लिए आज हम गाइडेंस लेने वाले हैं. ये गाइडेंस एंजलिक गाइडेंस होगा, यूनिवर्सल गाइडेंस होगा, और एक और मैं आई विल टेक अनदर डेक दैट इज़ गीता डेक विच विल गिव यू मोर स्पिरिचुअल गाइडेंस फ्रॉम द श्रीमद् भागवत गीता. तो हम ये सभी तरह के गाइडेंस आज लेंगे और ये इट विल बी अ टाइमलेस रीडिंग. व्हेन एवर यू गोइंग टू वॉच दैट वीडियो दैट विल बिलोंग्स टू यू ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. सो आप चाहे 10 दिन बाद देखें, चाहे महीनों बाद देखें, दैट रीडिंग विल बी for you only, because it is a timeless reading. Another thing I want to tell you that reading is a general reading, so it can or it can not be resonate with you. लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी और आपको बेहतर डिसीजन और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे गाइडेंस देगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लेट्स जम्प टू द रीडिंग. So I'm shuffling cards for the Pisces today. Please guide me for the Pisces mean Rashi guidance. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay. So we got 4 cards. First one is Lover's card. Second one is Fool card. Third one is Integration. And fourth one is Success. I hope you can see that. Okay, let's take out few more cards from the Angelic deck. Angelic guidance से हमें क्या guidance मिल सकता है? Angelic deck से क्या guidance मिल सकता है? Let's see. Please guide me for Pisces. Thank you so much. Please guide me for Pisces. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so first card is Recovery. Second card is The Situation Will Improve. Big Happy Changes. Wow. Success. We have 2 success card here. मतलब success तो ensured है. This one and this one. This is success card. Sorry. You can see that, right? And this is again success card. You can see, right? आज मैंने एंगल थोड़ा चेंज किया है कैमरे का. So okay. So I want to take out few more cards from the another deck. I want to know the Gita deck, the guidance from the Gita deck. Let's see what Bhagavad Gita sending guidance for my Pisces. My dear Pisces के लिए क्या guidance मिल रहा है? Okay. Transmigration. See how beautiful cards are these. Transmigration. Wisdom. Encouragement.
so beautiful pictures, see. Okay, so let's start reading. We have very beautiful cards and very nice cards, very positive cards for the Pisces. My dear Pisces, I love this sign because this is very easygoing sign. This is very, very simple people. They are just flowing like a water. They are more emotional. They are um, believe in bonding. They love meeting people. They love connecting people, and I think lot of feminine energy. I feel receptivity, openness, and positivity. Whenever I meet any Pisces person, I feel so connected. I feel so emotional connected. They are very emotional, generous people. They have very great intuitions, like they have very strong intuitions. They are very loveful people. They have a lot of love for everyone, they are quite sensitive, and they have some psychic insight. I met some few people who has that power, who has that talent to see the things in different view and express in very nice way, and they have some intuition, strong intuition. So yeah, this all about Pisces water sign. The element of Pisces is water. They are flowing like a water. They are very happy people, they doesn't like fighting. They doesn't like negative energy zone. अगर उनको ऐसी कोई जगह मिलती है, ऐसे कुछ लोग मिलते हैं, तो दे always opt to stay away from those situations, from those people. So Pisces people are very simple and satisfying people. वो खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं हमारी जो भी हमें लाइफ में मिलता है. They always try to pick out the great things even from the negative situation. So they are quite positive people. और पॉजिटिव लोगों के लिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आप देख सकते हैं आए हैं. द लवर्स, द फूल, द इंटीग्रेशन एंड द सक्सेस. तो आपका ये जो आने वाला मंथ है, मैं इसी मंथ से बोल रही हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छा टाइम आने वाला है. मेजर शिफ्ट, बहुत अच्छा वक्त आने वाला है आपकी लाइफ में. और आप जितना भी अभी तक सोच रहे थे कि इफ़ यू आर केप्ट वेटिंग फॉर समथिंग, कि आपको लग रहा है कि अब ये कब अच्छा होगा, मैंने इतनी मेहनत कर ली है, अच्छा वक्त कब आएगा, मैंने इतने शायद आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए होंगे, यू वर अबाउट टू बाय न्यू होम, यू वर अबाउट टू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, यू मस्ट हैव सम प्रपोजल, और यू आर हैविंग सम ट्रबल इन योर करंट रिलेशनशिप. तो आपका जो आने वाला टाइम है बहुत अच्छा है. अगर आप किसी जॉब में है, बिजनेस में है, लेकिन आपके लिए अगर अभी कुछ ऐसा था कि लाइक न्यूट्रल टाइम चल रहा था, ना तो बहुत नुकसान हो रहा है, ना तो कुछ बहुत फ़ायदा, लेकिन दैट कमिंग फ्यूचर, स्पेशली इफ़ आई टॉक, आई विल प्रिसाइसली से नेक्स्ट 6 months are going to abundance for you. So if I take few words for your prediction, so I would choose new journey, and things are getting settling and taking place for you. अगर कुछ चीज़ें ऐसी इधर उधर हो रही हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए सेटल होंगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वो चीज़ें एक तरह से सही जगह पर मिल जाएंगे. आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एफर्ट्स ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं. तो दिस इज़ द टाइम टू गेट अ फ्रूट ऑफ योर ऑल हार्ड वर्क. So as I told you, the new journey is going to begin, maybe new project, new business, new relationship, और अगर आपका करंट रिलेशनशिप है तो उसमें और अच्छा टाइम आने वाला है. अगर कुछ न्यूट्रल या लोअर फेज चल रहा है तो आई एम assuring you that coming future is wow for you. So lots of love vibes are there for you, and major shift, major change, because the Fool card always indicates very new things, pure things coming in your life, which is supported by all the universe. So I like this card because it's kind of innocence of, see, the Pisces people are very innocent, very easy, very
एक कमल की तरह, सी द लोटस तो एक कमल की तरह खिले खिले, फूल की तरह खिले खिले रहते हैं, खुश रहते हैं, उन्हें खुश रहने वाले लोग भी अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें खुशियाँ पसंद है। तो आपके लिए ये टाइम बिल्कुल आपके मुताबिक ही है, आपके लिए बहुत हैप्पी टाइम आने वाला है। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं आपको बुरा बोल सकूं कि आपके लिए ये बुरा है या वो बुरा है, बिकॉज आई कैन टेल यू ऑल right things and happy things for you in this reading. So yeah, though I will tell you the few warnings, I will give you some suggestion to आपको किन चीज़ों से थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी आगे। लेकिन in total if I say, तो it's a very good reading and positive reading for you. So as I told you, the new journey and things are taking place for you, major shift and good changes coming in your life, lots of love vibes. Agar those people or person who are still pretending that they are upset with you, they are angry with you, but somewhere they are feeling bad about it, because they are stressed out about it, because they are not able to tell you that they want to patch up with you, they want to come back to you. So the runner, जो भी एक जितने लोग, या जो एक बंदा या आपका जो पार्टनर है, वो आपका जो स्पाउस है या आपका लव रिलेशनशिप है, तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे अगर भाग रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो नाउ दिस इज़ अ टाइम दे विल कम बैक टू यू, बिकॉज दे कांट रेसिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम कमिंग टू यू. So I can see the very great and strong love energies and vibes around you. They are attracting towards you like a magnet. They are coming back to you. So be आप खुश हो जाइए और बहुत ही आराम से बैठिए. आपको कोई भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है. जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में, वर्क प्लेस पे या रिलेशनशिप में, पर्सनल लेवल पे, वो आपके पास खुद चल के आने वाले हैं और वो आपकी तरफ, वो स्ट्रेस्ड आउट है कि वाई आई एम स्टिल pretending like I don't care, I am ignoring, because they can't resist themselves. So yeah, so this kind of very good things are coming. अगर कुछ लोग ऐसे, few Pisces are, if they are single, they tie a knot because they can tie a knot because they are going to get a lot of good proposals in coming future, and maybe they have already confessed sorry. मुझे लगता है कि या तो आपको कुछ ऐसे, आप मेरे व्यूअर्स होंगे जिनको अभी कुछ ब्रेकअप्स को वापस से पैचअप में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और मे बी पॉसिबल कि इन कमिंग फ्यूचर दे आर कमिंग बैक टू यू टू कन्फेस द सॉरी. A big apology from your partner is coming your way. So it's very good news for you, right? क्योंकि किसी से भी आपको ये कोई रियलाइज़ करता है आपकी वर्थ हो, या फिर सॉरी बोलता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि नाउ ही इज़ रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यू मी. सो इट फील्स यू गुड, राइट? So sorry is coming your way from your partner, and I think this runner become new chaser. If I make a sentence, so I would say the runner is become new chaser. जो आपसे भाग रहा था वो आपके वापस पास आने वाला है. And if something is coming to the end, अगर कुछ ख़त्म होने जैसा है, चाहे आपका कुछ भी जॉब, अगर आप if you lost your job for some reason, or if you have to change your place for some reason, for new job or whatever, or even if you are going through a breakup from a bad relationship because आप बहुत ज़्यादा stuck feel कर रहे थे and you finally taken a decision to say it goodbye. So don't feel low, don't feel bad, because it's a kind of guidance from the universe that you are on right track. अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है. आपको आगे आने वाला जो टाइम है, जो आपके आगे फ्यूचर में जो आने वाले लोग हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं और बेहतर हैं. सो दिस एंड इज़ अ न्यू बिगनिंग. सो don't feel bad about it if something is getting end in your life.
बिकॉज बहुत अच्छा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। जब तक पुराना और बुरे को हटाएंगे नहीं तो वो स्पेस नहीं बनेगी नए के लिए। सो बी पॉजिटिव अबाउट इट, यू आर पॉजिटिव पर्सन, यू आर पॉजिटिव पीपल, सो आई डोंट नीड टू रिपीट दिस अगेन, so I know. And as I told you, things are getting better for you, so whatever you wished for, manifested, all are coming true. आपने कोई ड्रीम देखा है, आपने कुछ बहुत मेहनत की किसी प्रोजेक्ट को लेकर, या आपने किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, या आपने अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस आपने मैनिफेस्ट किया, तो वो सारा कुछ आने वाला है। लाइक अगर आप चाहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा या तो लॉटरी भी लग सकती है। आई कैन सी देयर आर 2 सक्सेस कार्ड, सी 2 सक्सेस, आई कैन अश्योर यू दैट सक्सेस, बिकॉज देयर आर 2 सक्सेस कार्ड फ्रॉम डिफरेंट deck. So I'm assuring you that very good time is coming your way. बहुत सारा पैसा भी आपका हो सकता है, कहीं स्टक हुआ पैसा है वो भी आपके पास आने वाला है। और हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू अ कोर्ट केस जो कि बहुत सालों से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, तो वो आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है। सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर फ्यूचर, सो एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस मंथ ओनली. And I'm assuring second thing again also that the next 6 months are very good for you. तो नेक्स्ट 6 महीने तो आपको बहुत ही आराम से गुजरने वाले हैं, बहुत ही, और इन 6 मंथ में आप इतना अच्छा कुछ कर सकते हैं कि आगे का आने वाला टाइम और भी बेहतर हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ द करंट प्रिडिक्शन, राइट। तो मैं आज से जो होने वाला है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कितना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है। But there are some warnings as well, dear guys. My dear Pisces, I would like to tell you few things जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है. So warnings are like I must tell you that be aware of haters. Like आपको अपने कुछ ऐसे लोगों से आपको बहुत कॉशियस होना ज़रूरी है, ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसको देख के आपको नेगेटिव वाइब्स आती है, जो आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू हैव दैट साइकिक इनसाइट, आपको साइकिक पावर है, तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड पीपल फॉर यू. तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, कुछ लोग आपका बुरा चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ कुछ नेगेटिव थिंग्स हो, आपका कुछ बुरा हो या आपका कुछ काम अटके इस तरह का, या आपके रिलेशनशिप को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन लोगों से, उस तरह के इन्फ्लुएंसेस से आप प्लीज़ बच के रहिएगा, क्योंकि इतने अच्छे माहौल में इतना अच्छा सब कुछ अच्छा हो रहा है. आप ये ना भूल जाएं कि आपको अपना ख्याल भी रखना है, नेगेटिव एनर्जीज से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखना है. तो देयर आर जेलस एनर्जीज एंड आई कैन सेंस द मेजरली दे आर फेमिनाइन एनर्जीज. अगर मैं ये देखूँ कि दैट इंटीग्रेशन that integration card is saying that there can be feminine energy, and I think you seek help, you seek advice from the opposite gender. It will helpful in this situation. Like जैसे अगर आप मेल है, if my viewer is male, so you can ask help from the female, and if my viewer is a female, they can ask help and guidance, advice from the male person, जो कि आपके बहुत ही करीब के लोग हैं, या कोई गुरु या गाइडेंस दे सकते हैं, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं अपोजिट जेंडर से. बट जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली एनर्जीज है उसमें मेजरली मुझे फेमिनाइन एनर्जी लगती है. तो बी अवेयर ऑफ दिस from this, because I don't want you to be in trouble in this very good time, good phase in your life. और कुछ चीज़ें मैं आपको बोलूँगी कि आपको इतना सक्सेस और इतना पैसा भी आ सकता है, आपको इतनी लव रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है, बहुत अच्छे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं. लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने ब्रेन में, अपने माइंड में उस सक्सेस को चढ़ने नहीं देना है. If I make a sentence, it means you need to eat your ego. Don't
थ्रो योर एटीट्यूड टू द पीपल, बिकॉज ये टाइम आपका अच्छा है और अच्छे टाइम पे हमें बहुत ही जनरस होना चाहिए, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। जितनी ज़्यादा सक्सेस, जितना बड़ा इंसान, उतनी ही जनरसनेस होनी चाहिए, उतनी ही हम्बल होना चाहिए उसको, उतना ही काइंड होना चाहिए, बिकॉज यू आर काइंड पर्सन, यू आर काइंड इमोशनल पीपल। Pisces are very nice people, happy people, so they can't sustain on ego for longer time. So I just want to realize you that this is not real you to own a ego, to own attitude towards other people. So आपका जो बेसिक नेचर है वो प्यार है, लव है, करेज है, इमोशन है, और हेल्प है, काइंडनेस है, कंपैशन है। तो आप इसी चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए रखिए जब आपके पास बहुत सारा सक्सेस और पॉजिटिविटी हो लाइफ में। आपको चैरिटी करनी चाहिए, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। आप काउंसलर बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी विचार बहुत अच्छे हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो आपको उसको बनाए रखने के लिए इन चीज़ों से दूर रहना है। तो जैसे जेलसी हुआ, ईगो हुआ, एटीट्यूड हुआ। सो आई वांट यू टू अवेयर फ्रॉम दिस थिंग, एंड you are very soft people, so I know कि I want you to stay away from the जिद, है ना। जिद होता है, घमंड होता है, ईगो होता है, इससे आप थोड़ा दूर रहें, क्योंकि इतना सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान में थोड़ा बहुत तो उसका असर आ ही जाता है। तो यू आर गोइंग टू एंटर इन वेरी न्यू phase of life, so I don't want you to block your blessings, your coming very bright light in your life, due to this blockage and negative energies. So stay away from this was all about the warnings for you. And this major shift is starting from this month, as I told you. So I want to congratulate for this because I'm really happy. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में पाइसेस हैं, फैमिलीज़ में पाइसेस हैं, तो मैं देख सकती हूँ कि आई कनेक्ट विद दोज पीपल। मैं जानती हूँ कि किस तरह से दे आर हाउ दे आर एज अ पर्सन। सो आई रियली फील सो ग्रेट अबाउट दैम, एंड आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट to them that very good time is coming and already started in your life, I guess. So if I take few words, I would say new job, business, promotion, good opportunities, big financial abundance, कोई रुका हुआ पैसा, ये सारा कुछ आपका आने वाला है। एंड आई कैन सी lot of popularity, बहुत सारा नेम एंड फेम आर गोइंग टू ऐड इन योर अकाउंट। बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ मिलना, और अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे तो अच्छी चीज़ें भी हम करेंगे। सो आई कैन सी द लीडरशिप, यू आर गोइंग टू बी असाइन्ड बाय सम मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच एडिंग मोर मनी एंड नेम, फेम, respect, popularity to your account of life. So these are very good messages I can see through your cards. And मुझे बस एक वार्निंग साइन लगता है मेनली, तो बस यही, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, दैट ईट योर ईगो, बैलेंस योर रिसेंट सक्सेस। आपको बी हम्बल एंड जनरस एंड काइंड, डोंट लेट योर सक्सेस टू कम इन योर माइंड। सर पे अपना प्राइड को मत चढ़ने दीजिए, बी जनरस, यू आर एक्चुअली लाइक दिस ओनली। सो आई नो कि आप इस चीज़ को मैच्योरली डील कर सकते हैं। बैलेंस एंड सीक हेल्प, स्पेशली अपोजिट जेंडर एनर्जीज़, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा कि अपोजिट जेंडर एनर्जीज़ के साथ आपको थोड़ा सा मिंगलअप करना चाहिए फॉर द बेटर एडवाइस। अगर आप कहीं स्टक हुए हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे। सो यू नीड टू बैलेंस, आपको लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपको अपोजिट एनर्जीज़ के साथ में मिंगल अप करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी लाइफ में अगर किसी तरह का कुछ नेगेटिव फेज आता भी है इन बिटवीन फॉर अ टाइम बिंग, छोटा सा भी, तो वो बैलेंस हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा।
and I can see more clarities going to add in your life. and अगर कुछ चीज़ें, अगर आप थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेट में अगर होते भी हैं तो अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी होगी, और क्लैरिटी उसी से होगी जब आप अच्छी, ये नेगेटिव एनर्जी जो थोड़ी बहुत है, जैसे ईगो है, एटीट्यूड है, जो मैं देख सकती हूँ कि आपको शायद सक्सेस की वजह से या आपको पैसे की वजह से या आपको लगे कि अब तो मेरी लाइफ बहुत सिक्योर है, फाइनेंशियली, इमोशनली रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, तो आप थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। तो उस वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको वो अपना जो बेसिक नेचर है उसको मेंटेन करके रखना है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी वेटिंग स्टेट में अभी हैं, मुझे तो लगता है कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छा टाइम शुरू होने के हिंट्स और सेंस मिलने लग गई होंगी। लेकिन अगर आप स्टिल यू आर फीलिंग लिटिल लो और इन सम वेटिंग स्टेट फॉर लव और मनी सक्सेस, तो दिस इज़ द टाइम टू enjoy this now, because they are all together coming in your life to pamper you. So don't scared, आप बिल्कुल ना डरे किसी भी चीज़ से। आप अगर, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल, मुझे लगता है आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और ज़्यादा भगवान की भक्ति, आप चैरिटी करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो ये चीज़ें जो बढ़ चढ़ के आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। तो आप ये ज़रूर कीजिए। आपको अगर डर लगता है कुछ, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत डरे हुए हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ये रीडिंग, ये गाइडेंस यही आपको इंश्योर करने के लिए है कि आने वाला टाइम अच्छा है। तो आप बिल्कुल किस चीज़ की फ़िक्र ना करें, चिंता ना करें। और अगर आप, इफ़ यू आर लूजिंग समथिंग लाइक जॉब, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ़ यू आर लूजिंग, इफ़ यू आर ब्रेकिंग अप विद समवन, और इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम ब्रेकअप और यू नो नेगेटिव थिंग, कि आपको लग रहा है मेरी लाइफ में आपको क्या बचा है, मेरा रिश्ता टूट गया, या यू नो आई लॉस्ट माई जॉब, आई एम नॉट हैविंग अनदर जॉब इन माई हैंड राइट नाउ, or maybe you are having some low time in your workplace or business, so it is all majorly going to shift from 0 to 100 like this. So don't worry, be happy, good time is coming. So बस अपने अपना जो स्टेटस ऑफ माइंड है उसको आप मेंटेन करके रखिए, बिल्कुल नेगेटिव ना हो। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टैरोट रीडिंग, जो कि मैंने किया। अब हम लोग देखते हैं कुछ हमारे एंजेलिक गाइडेंस क्या मिल रहा है। एंजेलिक गाइडेंस रिकवरी है। रिकवरी यही बताता है कि आपको अगर हेल्थ इश्यूज़ भी अगर हैं कुछ, या आप किसी बुरे वक्त से निकल रहे हैं, या फिर आपको कोई मतलब बुरा इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ है इमोशनली, या सम डिप्रेशन थिंग और एक्सीडेंट और वॉट एवर इट इज़ द इलनेस, तो इट्स गोइंग टू रिकवर। दिस इज़ द साइन that universe is saying that recovery time is coming, टिंग टोंग। अब बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए, आपको रिकवरी ही रिकवरी, हीलिंग ही हीलिंग होगी। उसके लिए आप ये ज़रूर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ हीलर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अ रेकी हीलर एज वेल। यू कैन connect with me to get healed, to get advice, personal advice or guidance, so I can give you some spiritual or mindly, like आपको emotionally आपको strong करने के लिए I can give you some advice or healing. So yeah, you can get some help from the healers or guru or guide, something like that. Another card is the situation will improve. As I told you, the all cards, these all cards are saying that situation are going to improve. ये तो बात हम जान चुके हैं। तो this is another statement that which is ensuring situation is going to improve. Another card what which we get, big happy changes. wow, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं मेजरली वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। अभी आपको हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को आपको लग सकता है कि यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप नहीं चाहते कि आपकी प्लेस चेंज हो, आप ट्रांसफ़र लेना नहीं चाहते, आप न्यू जॉब में कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन हो सकता है ये जो भी चेंज हो रहा है वो आपको बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, बेटर के लिए हो रहा है। तो गो हैड। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या नहीं, आप सिंगल हैं, लेकिन आपके सामने कुछ प्रपोज़ल आ रहा है जो कि आपको लगता है कि ये लेना चाहिए कि नहीं प्रपोज़ल, तो प्लीज़ लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में तो बहुत ही अच्छा टाइम है। आपको बहुत सारा लव, पैम्पर और यू नो सिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, एवरीथिंग व्हाट यू आर manifesting till now is going to come in your life.
So another success. So yeah, success is coming, success is ensured in your life. So yeah, चलिए देखते हैं गीता डेक में से क्या क्या मिलता है हमको. ट्रांसमिग्रेशन. आई लव दिस कार्ड्स बिकॉज द कितना अच्छे पिक्चर्स है, कितने अच्छी ड्राइंग पेंटिंग. ट्रांसमिग्रेशन मीन्स कंटिन्यूसली पासिस इन दिस बॉडी, लाइक आपको कोई चेंजेस. सी आई टोल्ड यू दैट ट्रांसमिग्रेशन बेसिकली अ साइन ऑफ चेंज. तो चेंज तो आपको दिख ही रहा है, फ्रॉम मेजर शिफ्ट तो आपको दिख ही रहा है कि आप अगर आपकी लाइफ में अभी सब कुछ न्यूट्रल है या लो है तो बहुत ही हैप्पी टाइम में जा रहा है, तो चेंजेस आर देयर. तो ट्रांसमिग्रेशन इट्स अ काइंड ऑफ साइन टू से दैट चेंजेस आर गुड, चेंजेस आर कमिंग योर लाइफ. और जो इस चीज़ को विटनेस कर लेते हैं ना, तो उनके लिए हर चीज़ समझना बहुत आसान होती है. अगर आप घबराते हैं चेंज होने से कि आपकी लाइफ में आपको कुछ चेंज पसंद नहीं है, तो फिर आप हमेशा थ्रू आउट ट्रांजिशन टाइम आप हमेशा परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे. लेकिन ट्रांजिशन टाइम को अगर आप विटनेस करेंगे, इन्जॉय करेंगे, तो आपको ये लगेगा, समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाओ दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी, कि ये जो भी हो रहा है फॉर अ रीज़न हो रहा है. सो इफ़ आई से if I define the transmigration, yeah. So at this embodied soul, ये जो हमारा शरीर होता है उसके लिए है continuously passes in the body from bodyhood to youth to old age. हमेशा हम सबसे पहले यूथ में होते हैं, फिर ओल्ड एज में जाते हैं, फिर then soul similarly passes into another body. जब आपकी मतलब डेथ के बाद जब आप एक सोल दूसरी बॉडी में जाती है तो भी एक ट्रांजिशन टाइम होता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसमिग्रेशन. जो बदलाव होता है, सच चेंजेस डज नॉट डिस्टर्ब द माइंड ऑफ दोज हु नो द ट्रुथ. उन लोगों को ये चेंजेस बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, जो कि जानते हैं कि चेंजेस तो होना ही है और चेंजेस जो हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं. तो ट्रांसमिग्रेशन इज़ ए पॉजिटिव कार्ड. बदलाव तो अच्छी चीज़ है ना, बदलाव होना कोई बुरा तो होता नहीं है. तो कितने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए. सी द विजडम. वाओ, आई लव दिस पिक्चर ऑल्सो. या विजडम का मतलब यही होता है कि आप बहुत ही समझदार हैं, आपको सही मौका मिला है. और व्हेन विद द विजडम बाय विच मतलब कुछ भी then I think the knowledge, wisdom is knowledge. You know the things how they are. और जब आपको पता होता है तो आप उसको डील इजीली कर लेते हैं. जैसे कि आपको लगता है कि इतना अंधेरा है, इतना डार्क है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा. लेकिन आपको ये जब पता है, ये विजडम है, ये नॉलेज है, ये सेंस है कि ये रात है अभी इसलिए अंधेरा है, जब सुबह होगी तो उजाला होगा क्योंकि सन वुड बी देयर टू लाइट अप द वर्ल्ड. तो ये जो एक विजडम है, एक नॉलेज है, ये आपकी लाइफ को थोड़ा इजी कर देता है. आपको सोचने का तरीका जब आप बदलते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है. आप उसको जब आप मेंटली बहुत हेल्दी सोचते हैं और बहुत ही हेल्दी चीज़ों को डील करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है. कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों के लिए होती है जो हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं या हर नई बात से घबरा जाते हैं. तो वो चीज़ें थोड़ी इमैच्योरिटी वाली श्रेणी में भी आती है. तो आप एक विजडम वाले कार्ड पे हैं, आप एक विजडम वाले गाइडेंस पे हैं, तो इट इज़ शोइंग, इट इज़ इंडिकेटिंग दैट यू आर वेरी वाइज पर्सन, यू आर वेरी वाइज पीपल, जो कि इस सक्सेस को भी हैंडल कर सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं. एंड द लास्ट कार्ड इज एनकरेजमेंट. या इनकरेजमेंट तो देख ही रहा है कि आप बहुत ही हैप्पी पीपल हैं, तो आप हमेशा इनकरेजेस अपने आप को मोटिवेट करते ही रहते हैं. और सी लेट नॉट द वाइज डिस्टर्ब द माइंड ऑफ द इग्नोरेंट हु आर अटैच्ड टू द फ्रूटिव वर्क. अगर कुछ लोग होते हैं जो कि उनको काम पसंद नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. लेकिन जो इनकरेजमेंट को फॉलो करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं कि इनकरेज होना अच्छी बात है, प्रोग्रेस करना अच्छी बात है, तो
तो वो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और कुछ लोग होते हैं डिस्करेज पीपल होते हैं, नेगेटिव सैडिस्ट पीपल होते हैं, उनको ना तो दूसरों की सक्सेस अच्छी लगती है, ना तो खुद को कुछ और करना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि इंकरेजमेंट इज़ अ पॉजिटिव इमोशन टू हैव टू ओन। तो या आई थिंक दिस इज़ द वेरी राइट टाइम टू फील लाइक दिस, राइट। एंड इनकरेज आपका जो लाइफ में अगर इनकरेजमेंट होता है, आप इस तरह के पॉजिटिव पर्सन हैं, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। और आपके सराउंडिंग भी अगर नेगेटिव होंगे तो वो भी आपके ऑरा से, आपकी वाइब से, एनर्जी से मोटिवेटेड होंगे। तो या इट्स ऑल अबाउट फॉर माई पाइसेस। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत ही मोटिवेट की होगी, पॉजिटिव किया होगा, आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा, शायद आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैंने आपकी मदद की होगी। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ, और इसके लिए मुझे तभी अश्योरेंस मिलेगा जब आप फीडबैक देंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। यू आर गोइंग टू have very great time, or maybe possibly you are already having a good time. So all the best, enjoy your time, enjoy your success, good health and lots of love in your life. Or thank you so much, take care.